Morning class 12. In business study class, today's our topic is financial management chapter number 9.1. Students एग्जाम से पहले हमने फाइनेंशियल डिसीजन तक ये टॉपिक किया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ वी कंटिन्यू दिस टॉपिक एंड इन द फाइनेंशियल डिसीजन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो टुडेज आवर टॉपिक इज financing decision and dividend decision. First of all, the financing decision. Financing decision means the amount which funds is to be collected by the company, the amount of funds which is to be collected by the company by different long-term sources. So whichever is adequate or whichever is benefited for the कंपनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज फाइनेंशियल डिसीजन कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फाइंड्स के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिनसे फंड्स रेज कर सकती है, जिनसे फंड्स कलेक्ट कर सकती है, और ऐसा चीपेस्ट और बेस्ट सोर्सेज सेलेक्ट करना ही फाइनेंशियल डिसीजन है. जस्ट फॉर एग्जांपल, कंपनी कैन रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू बाय इश्यूइंग ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, or plugging back of profit, retained earnings, right? These are the sources of collecting the long-term funds. So whichever is the best will be known as the financing decision. So here are some of the factors which affect the financing decision. First of all, the cost. Cost includes the factor which affect the financial decision. Is cost means the cost of different sources. The cost of issuing the debentures is interest, and the cost of issuing the preference share or the equity share are dividend. So the whichever is best, कौन सी कॉस्ट कम आएगी, कौन से शेयर को इश्यू करने से या डिवेंचर को इश्यू करने से कौन सा सोर्स अवेलेबल है, कौन सी कॉस्ट हमारे पास चीपेस्ट है. सो द सेलेक्टिंग द चीपेस्ट वे विच द कॉस्ट इज लेस. जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर वी कंपेयर द कॉस्ट, देन ऑलवेज इश्यूइंग द डेप्ट कैपिटल बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज लेस देन द dividend. So when we compare on the basis of cost, always preference the debt capital. Number two is risk. Right? When we keep in mind the factor of risk, then debt capital is always risky. Number third is flotation cost. Flotation cost means the cost of issuing the share and debentures. Right? So depend upon the flotation cost, share की cost ज्यादा है या debenture की cost ज्यादा है. So keep in mind the flotation cost when we issuing the share and debentures. Then cash flow position of the business. Cash flow position means includes cash inflow or cash outflow. तो फाइनेंशियल डिसीजन में कैश फ्लो पोजीशन कैसे इफेक्ट करेगा कि अगर हमारे पास कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस. वेदर कैश इनफ्लो यानी कि अगर हमारे पास कैश ज्यादा आ रहा है, right, cash inflow is more than the cash outflow, then always choose the debt capital because the company is capable to pay the interest now. अगर आपके पास कैश ज्यादा आ रहा है, कैश इनफ्लो कैश आ ज्यादा रहा है और कैश आउटफ्लो आपकी कम है, तो हमेशा डेप्ट कैपिटल को ही चूज करना चाहिए. कैश इनफ्लो अगर आपके पास ज्यादा है तो कंपनी इंटरेस्ट इजिली पे कर सकती है, देन ऑलवेज चूज द डेप्ट कैपिटल. देन द लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दो तरह की होती है. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट. Fixed operating cost or fixed financial cost. Fixed operating cost just like the rent of building, the salary of permanent employee. These are the fixed operating costs. And fixed financial cost means when we paid the interest on the debt capital or the fixed rate dividend on the preferential capital. So depend upon the fixed financial cost. अगर आपका fixed dividend or interest, fixed rate of interest are to be compared, so the cost whichever is less, then always select the source of business finance. अगर आपका dividend का fixed rate of dividend and the fixed rate of interest is less than the dividend, then always prefer the debt capital. Then control consideration. तो कौन सा सोर्स आप फाइनेंस के लिए चूज करेंगे, उसके लिए कंट्रोल कंसिडरेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल को ज्यादा सेलेक्ट करते हैं तो सारा का सारा कंट्रोल या सारा का सारा बिजनेस का मैनेजमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में आ जाएगा. तो because the equity shareholder can participate in the management, but the debt capital or the
preference shareholder cannot participated in the management of the business. So अगर आप इक्विटी शेयर को ज्यादा इशू कर रहे हैं तो सारा का सारा कंपनी का कंट्रोल जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में आ जाएगा. तो अगर कंट्रोल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल शुड बी preferred in the case of control consideration. Then state of capital market, capital market की कंडीशन पे भी हमारा एक फाइनेंसिंग डिसीजन मैटर करता है. कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ सिचुएशन, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट. बुल मार्केट में क्या होता है कि बुल मार्केट इन दोज सिचुएशन इन विच द प्राइस ऑफ द शेयर इज हायर, the price of the share is rises, then the people are interested to invest in the share, then you can use the share capital as a source of business finance. bear market में क्या होता है कि आपके शेयर के प्राइस डाउनवर्ड होते हैं और पीपल जो है वो शेयर में पीपल कैन नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टेड द मनी इनटू द शेयर, देन वी कैन यूज द डेब्ट कैपिटल. सो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ bull market or bear market also. So student, this was the concept of financial decision. Now the concept of dividend decision. Dividend decision means in a company organization, shareholders want to get more and more dividend, but the managers want that the profit should be retained in the business for the future uncertainty or future growth. So the decision that amount which are to be distributed as a dividend or the amount which are to be kept for the retained profit for the future uncertainties or growth of the business. So the कितना अमाउंट का हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, कितना अमाउंट हमें रिजर्व के फॉर्म में रखना चाहिए, दिस डिसीजन आर टू बी टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर एंड दिस डिसीजन विल बी नोन एज द डिविडेंड डिसीजन. सो हियर आर द सम ऑफ द फैक्टर which affect the dividend decision. Number one, amount of earning, right? अगर आपके amount of earning, business का earning ज्यादा है, amount of earning profit ज्यादा है, present profit and reserve profit ज्यादा है, then company can declare the higher rate of dividend. Stability of earning, अगर कंपनी की इनकम जो है वो स्टेबल है, right? More and more profit you can earn and your profit are stable, then the company can declare the more and more dividend. देन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि कंपनी जो है वो हर साल एक फिक्स रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है या फिर इंक्रीज रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कभी भी डिक्रीज रेट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, तो इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी. तो अगर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल है, देन कंपनी कैनॉट चेंज, cannot decrease the dividend, then depend upon the policy of the dividend also. अगर तो कंपनी को एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा, कंपनी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती. देन द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा रिजर्व प्रॉफिट रखना पड़ेगा. प्रॉफिट शुड बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व इफ देयर इज ए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन एन कंपनी. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर के लिए ग्रोथ की चांसेस हैं, तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रिजर्व प्रॉफिट रखना चाहिए, तो डिविडेंड जो है वो कम रेट से डिक्लेयर होगा. कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन मीन्स कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस, राइट? अगर कंपनी का कैश इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है, कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन द कैश आउटफ्लो, देन कंपनी कैन डिक्लेयर द मोर रेट ऑफ हायर रेट ऑफ डिविडेंड. देन शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर किया जाए या कम. शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस में दो तरह के शेयर होल्डर आते हैं बेटा. एक तो जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, एक फिक्स रेट से रेगुलर इनकम चाहते हैं, और एक ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो अपने कैपिटल प्रॉफिट को या अपने डिविडेंड को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट? और डिविडेंड इंक्रीज कब होगा या कैपिटल प्रॉफिट्स कब इंक्रीज होंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि रिटेन्ड प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंसेस ऑफ द शेयर होल्डर की अगर वो रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हमें डिविडेंड ज्यादा रेट से डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर वो कैपिटल गेन ज्यादा चाहते हैं तो हमें रिटेन्ड प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे और डिविडेंड कम रेट से डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो डिपेंड अपॉन द शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस आल्सो. Then the taxation policy. Taxation policies also plays a very important role to declare the dividend. अगर डिविडेंड को हायर रेट से जा रहा है और टैक्सेशन पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड है, अगर टैक्सेशन पॉलिसी टैक्स हायर है डिविडेंड के ऊपर तो हमें कम रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा. एंड इफ देयर इज ए टैक्सेशन बेनिफिट देन दैट डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द हायर रेट.
Then the stock market reaction. Stock market reaction and the dividend declaration plays a very important role. There is a direct connection between the dividend declaration and stock market reaction. जैसे ही एक कंपनी ज्यादा रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी के प्राइस, शेयर के प्राइस मार्केट में ज्यादा हो जाते हैं, एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड बाय हायर रेट। और अगर कम रेट से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी टाइम कंपनी के शेयर के प्राइस जो है वो डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो इस बात को भी माइंड में रखकर एक फाइनेंशियल मैनेजर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। देन द असेस टू कैपिटल मार्केट। असेस टू कैपिटल मार्केट, इट मीन्स if the loan is to the company can assess the capital market very easily. It means कंपनी को कैपिटल मार्केट से लोन इजिली मिल जाता है तो कंपनी हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और अगर लोन इजिली अवेलेबल नहीं होता तो कंपनी लेस रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। देन द लीगल कंसेंट्रेट। अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन द डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट the capital profit cannot be used in the capitals cannot be used in the dividend declaration, right? और अगर आप कैपिटल गेन में से प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो लीगल कंसेंट्रेट के अकॉर्डिंग भी, लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी कंपनी को अपना डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजन. You have to prepare it. Thank you.